Greetings everyone. Today I Astha welcome you to the another interview session at YMCA Sanchar. Today we feel super elated to share our prestigious platform with one of the finest and one of the versatile personalities of the Bollywood industry. She is an actor, business entrepreneur, producer and a power-packed woman. She is none other than Mrs. Gunjan Kutiala ma'am. Thank you so much ma'am for joining in for our today's discussion. Firstly, I want to know, as far as we know, that you are from journalism background. You've been worked with Z News Network and then you moved to USA after your marriage and now you are a producer. So how this journey has evolved, we just want to know in your terms. See, you are what you are because of what all you've gone through, right? So let me correct. I started my career in Faridabad. In City Cable Networks, and that's how my association started with Z Network, and I contributed, quite a content for both City Cables and the Z Network. I moved to US from NCR in 2004, 19 saal pehle. Okay. And journey, it's been learning. Every life is a roller coaster. You go through ups and downs. Right. So I grew up in small towns of India, a lot in Haryana, a lot in Punjab. Yeah. And of course, my motherland coached me a lot. My education was here, and then lot of my job life thereafter. I've been in HR all my life there, but creative aspirations were always there. Creative कीड़ा जैसे बोलते हैं ना कि हाँ, there was a writer within me forever. So that's how the film journey started a few years back, and I've been a producer and as writer lately. So we really appreciate this journey. I think Thank this you. is one of the finest motivating journey which I have ever witnessed. Thank And you. ma'am, you were an actor. I mean, you have worked into the music videos as well, and now you are a producer. So there would be just a slight change of the ideology, how you perceive people. As an actor, you were working, but now you're a producer, you are giving work. So how this ideology has changed, and what are the key frames which you look in individuals? A very good question. So here it is. First of all, like I said, that I have been in HR industry, as in talent acquisition industry all my life. I create ecosystems. I had creation of recruitment architecture. Right. So I find film production very similar. It's all about hiring the right talent, creating the right ecosystem, right team within the budget and the timeline, and that's what is filmmaking all about. अपने लोगों को इस तरह से एकत्रित करना that they all feel belongingness towards the project, that no individual is bigger than the project, and they all are passionate about the baby, the film, production that they're working towards. So honestly, I didn't find, of course there was a lot of learning, Right. but from talent hiring perspective, it came kind of natural to me because that's what I had been doing for 19 Right. years. So yeah, वो मुझे दिक्कत नहीं हुई, ईश्वर की कृपा से. Right. So जी. I think the other name of life is learning. So you Indeed. just mentioned budget and time. Two things. So आपने ये जो फिल्म प्रोड्यूस करी है, I must sure कि इसमें भी काफ़ी सारे budget issues रहे होंगे. So do you want to address any fun moment which happened, or I think anything serious which took place while managing the budget? Absolutely. So कुछ बातें आप बता सकते हैं, कुछ बातें आप नहीं बता सकते. तो जो बता सकते हैं उसमें मैं I would share कि usually when I'm in HR profession, so I've worked with God's grace, a lot of good companies as well, managed hiring projects for Amazon, TripAdvisor, Expedia, Capgemini, etc. So वहाँ पर तो budget में I have been, with God's grace, I've been You're blessed. kick-ass, Okay. Sorry for my French. But in the filmmaking, क्योंकि मेरा ये I've produced another film which is on Amazon Prime, and an English one, Encrypted. But ये मेरी पहली हिंदी project है. Yes, इसमें मैं सच बोलूँ मेरे budget से आगे बढ़ी, मतलब it was way more than what we expected, being a new baby. और तो और being a female, Right. new filmmaker and NRI is very lethal combination. मेरी कभी कभी मेरी स्ट्रेंथ भी बनी. मुझे बहुत सारे स्टार्स ने, एक्टर्स ने एग्री किया. Because of the content. Our content, I think, was is very profound. In a very subtle way, we are touching very bold subject stories. But also coming from corporate background, they saw the authenticity कि ये इनका अच्छा intent है, quality in an organized, structured way ये content create करेंगे. But बहुत लोगों ने ये भी समझा कि दिमाग घुटने में है.
you know. Yeah. So for example मेरी हार्ड ड्राइव्स किसी ने रैंसम रख ली तो वो पैसा दे के किसी तरह से हार्ड ड्राइव्स लेनी पड़ी. कई चीज़ें जो एक्स अमाउंट की होनी चाहिए थी वो डबल ट्रिपल हो जाती हैं, you know. अगेन उनको लगता है NRI है, चलो जी. और फीमेल है इस आई मीन देयर आर लॉट ऑफ फीमेल. मेरी कोर टीम में आप मानेंगे नहीं वुमेन है इन अमेरिका. या सो तो दिखते भी आई, पर वो जब एक इंसान किसी को क्या सपोर्ट करेगा या प्रॉब्लम्स देगा, एक कंपनी किसी को क्या दे देगी, वो ऊपर वाला जानता है ना, व्हाट यू डिजर्व. Right. सो आई फर्मली बिलीव इन व्हाट यूनिवर्स विल फिगर इट आउट. देयर हैव Universe has plans for everyone. indeed I believe in secrets. Right. जी. And ma'am, you just marked that a lot of difficulties. Then I feel that signature is something which has been established if you walk the other way. Wow. अगर आप भीड़ चाल में चल रहे हो तो you won't get a signature, you won't be highlighted. But if you choose another way, there is a way. Indeed. Yeah. Thank you. So I talking about signature. So अगर मैं यशराज प्रोडक्शन या कोई बड़ा प्रोडक्शन होती और तब मैं ये सिग्नेचर क्रिएट करती कि सी फॉर मी ट्रू वुमेन एम्पावरमेंट इज कि मैं बोल्ड मुद्दे छू रही हूँ विदाउट मेकिंग वुमेन एन आइटम. Right. Why do I need to show woman body? Why do I need to show, you know, bold scenes? जिसके लिए मुझे कई लोगों ने बहुत जैसे जो मेरी स्ट्रेंथ मुझे लगता है हमारी स्ट्रेंथ है जिसके कारण मेरे ज़्यादातर एक्टर्स ने हाँ बोला, चाहे वो भाग्यश्री हो, जुगल हंसराज हो. They are known for doing very profound work, right? तो and lot of other actors who agreed. वो मेरी वीकनेस भी बनी. मुझे बहुत लोगों ने बोला ये क्या है, आपने बोल्ड मुद्दे छुए बट बोल्ड कहानियों को जस्टिस नहीं किया. बट क्यों मैं वुमेन को एज आइटम प्रेजेंट करूं? किस डॉक्टर ने कहा है कि बोल्ड मुद्दों को छूने के लिए वी हैव टू इनकॉर्पोरेट न्यूडिटी फॉर द हेक ऑफ इट? Right. सो वो मेरी वीकनेस बनी. पर ये सिग्नेचर एस्टैब्लिश करने के लिए इनिशियली मुझे बहुत दिक्कत हुई. Right. बट आई स्टूड बाय इट. मैंने कहा नो. दूसरा सिग्नेचर जो हमारी फिल्म के थ्रू है, सॉरी मैं साथ साथ में प्रमोशन भी कर रही हूँ. हमारी फिल्म में आई वांटेड टू शो कि ट्रू वुमेन अगेन एम्पावरमेंट इज कि अगर आदमी के मन में लव वर्सेस डिजायर्स की वो लक्ष्मण रेखा पे आप पहुंचते हो तो लोग समझते हैं. वुमेन को जल्दी टाइप कास्ट कर दिया जाता है, यू नो. उसको ही सारे उसूलों की, रूल्स और रेगुलेशंस की रूल बुक दे रखी होती है बचपन से, यू नो. सो अगर वो एक वुमेन क्यों लक्ष्मण रेखा की बाउंड्री तक पहुंचती है, हमारे इतने खूबसूरत रामायण में इसको जस्टिफाई कर रखा है, तो हम ये दुनिया क्यों हमारी रामायण से ही आप सीखिए, यू नो. कभी सीता को गलत समझा गया नहीं ना, उसको दे वर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई शी रीच्ड the Lakshman Rekha or she crossed the Lakshman Rekha. Right. Similarly, I've tried to show in our film कि अगर एक woman grey shades तक पहुँचती है या grey shades, because nobody is perfect these days, you know, especially now in जैसे बोलते हैं कलयुग. So अगर कोई woman grey shades तक पहुँचती है तो वो क्यों पहुँची? What circumstances led her to over there? What emotions? You would see the true dwelling into those, you know, emotions, and I think जो ज़्यादातर इंटेलिजेंट, मुझे लगता है हमारे आजकल की जनता बहुत इंटेलिजेंट है, वो विल बी एबल टू सी. सो दोज सिग्नेचर्स वर I tried to we tried to create those, but being a new filmmaker, yes, difficulty आई, but hopefully people will understand eventually. Right. And you are also the writer. You have written this script. So how difficult was it for you to manage that script? Because जब हम लिख रहे होते ना, we have to take care of a lot of things कि how people will perceive that, and you make we really appreciate that you made a really bold move by adding no kissing scenes or maybe no nudity in the film, and being the female producer, it is a very great move. So we just want that there are so many script writers, there are so many content writers out the world, so how they can also make this perception of writing? Good question again. So पहली बात तो if the students are watching it, जिंदगी में कोई भी चीज़ आसान नहीं होती. तो don't get you know boggled by or stressed by कि अरे ये मुश्किल होगा. जो आपके अंदर का यूनिवर्स आपको अलाउ करता है कि नहीं मुझे ये टॉपिक पे टच करना है और दिस इज हाउ आई वांट टू परसीव, डू इट. दिखते आएंगी, बट देन यू डोंट नीड टू नो द A to Z. पूरी A to Z जानने की जरूरत नहीं. A पता है आपको, Z पता है. एंजल्स विल कम इफ यू हैव द पॉजिटिविटी, ऑथेंटिसिटी और कुछ करने की शिद्दत, पैशन, यू नो, बिलीफ विद इन योर ड्रीम, तो अपने आप एंजल्स आएंगे, अपने आप कहीं ना कहीं से विजडम आपको मिलता जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू वॉक टूवर्ड्स फ्रॉम A to Z. सो दिखते आई या नहीं आई ऑफ कोर्स, बट सो व्हाट. कौन सी जॉब में दिक्कत नहीं है? ट्रू. आप एक चाहे वो एक कुक हो, चाहे वो मेड हो घर की, या चाहे कोई चेयरमैन हो, कोई भी प्रोफेशन हो, सब every life has its roller coaster. You have to embrace it. That's all. Initially, hard work is the key to success.
hard work and the belief. Belief in yourself, self-confidence. Yeah, maybe. belief in your baby that you are creating. You know, एक माँ जो बच्चे कोख में बच्चे को लेती है तो उसको belief होता है कि वो बच्चा को मैं जन्म दूंगी. Right. You know, right. so yeah, have the belief. Right. Yeah. And today alongside us, we are having some journalism students along us. So the floor is open. If you feel any questions related to our discussion, you can ask. Ma'am, my question to you is how difficult it is to find that perfect team. Like, as you said, nothing is perfect, but you have a perception, you have an idea that this is the way you want the film to be. You have written it yourself and you have nurtured it like a baby. So, how difficult it is to find the people who can do justice to it? Beautiful. Again, so हमारे यहाँ पे A+ स्किल्स उसको बोलते हैं. जैसे अमेजोन में हम हायरिंग करते थे ना या किसी अच्छी बड़ी कंपनीज में उनको बोलते हैं ग्रीन स्किल्स, ये A+ स्किल्स. एंड दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो इवेंचुअली जॉब भी ढूंढेंगे. तो ट्राई टू incorporate that as in within your attitude somehow. A+ skills means people who exhibit passion, energy, enthusiasm, ability to take initiative and positivity. उनको बोलते हैं A+ स्किल्स. तो वो एक तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, टीम होती है जो आपको टारगेट करनी है. क्योंकि B लेवल के लोग होते हैं, ठीक है यार पैसा मिल रहा है काम करना है. C कैटेगरी होती है जो हमेशा क्रिप भी करती है. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, आपके वो ज़्यादातर 3 तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं. A जैसे मैंने बताया, B ठीक है जो थाली के थोड़े सॉरी टू से बैंगन की तरह होते हैं कि अगर उसको A वाले मोटिवेट करेंगे तो वो हाँ जरूर. बिकॉज A+ कैटेगरी के एम्प्लॉयज क्या होते हैं, दे आर योर गोल ड्राइविंग फोर्स. ओके. B वाले अगर उनको थोड़ा मोटिवेट किया जाए, ओके वो कर लेंगे काम. C वाले तो हमेशा जो मर्जी कर लो, उनके लिए कुछ ना कुछ नुक्स निकाल लेंगे. सो व्हेन यू आर हायरिंग योर टीम, बी इट अ स्मॉल प्रोजेक्ट, अ वॉलंटियरी प्रोजेक्ट, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं भी हो, आपको वो A बनने की कोशिश करनी है. बिकॉज व्हेन यू गोइंग फॉर द इंटरव्यूज और यू आर हायरिंग फॉर योरसेल्फ, फॉर योर प्रोजेक्ट्स, दोज आर द पीपल यू वांट टू इनकॉर्पोरेट, जहां आपको एनर्जी फील हो. और जो एनर्जी फील हो जाती है आपको, आप जब किससे बात करते हैं आपको एनर्जी वो फील हो जाती है. तो दैट्स द एनर्जी गोल ड्राइविंग फोर्स दैट यू हैव टू लुक फॉर. एंड that's what you need to kind of grow within yourself, and that comes from practice if you're growing within yourself. So वो मैंने कोशिश की, but yeah कई बारी कुछ परफेक्ट कोई भी नहीं होता ना. हम हायरिंग में परफेक्ट हैं, बट हाँ कोशिश की कि मैं वो पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग को हम एकत्रित करें जो कुछ लोग टैलेंटेड हमने हायर किए, कुछ हमारे न्यू फिल्म मेकर्स भी थे. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर मी वाज कि जज्बा हो, पैशन हो, पॉजिटिविटी हो, फिर तो थोड़ा बहुत काम सीख लेंगे. जब आप हमारे स्टेज पे रहे होंगे, यू वुड हैव बीन एट अ स्टेज जब आप लाइक यू लूज दैट बिलीफ, यू स्टार्ट लाइक आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हो जो आपको डिमोटिवेशन आना शुरू होती है. एंड देर आर बैरियर्स, लाइक यू वांट टू डू थिंग्स बट देर आर बैरियर्स. सो हाउ डिड यू लाइक ओवरकम ऑल दोज फियर्स, दोज बैरियर्स? ब्यूटीफुल क्वेश्चन. सो हनी, चाहे वो आपकी 20 साल की उम्र हो या अब मेरी 41 की उम्र हो या आगे 60 साल की उम्र हो, ऐसा नहीं है कि हमेशा मेरा बिलीफ हमेशा 500% स्ट्रॉन्ग ही रहता है. There are stages, there are bottlenecks when you're like, oh my God, क्या कर रही हूँ मैं? You keep doubting. वो तो this is life. There will be always stages which will challenge you. So, but फिर भी कहीं ना कहीं मैं अगर भगवान जैसे बोलते हैं ना, ये ईश्वर बोलते हैं, आई बिलीव देयर इज गॉड इज वन, तो वो मेरे लिए बिलीफ ये है कि नहीं, अगर मैं अच्छी इंसान हूँ, मेरा मकसद किसी को हार्म करने का नहीं है, तो बस वो यूनिवर्स अगर सांप भी लाएगा ना लाइफ में, तो वो सांप मुझे सीढ़ी की तरह ऊपर चढ़ाने के लिए लाएगा. और कुछ ना कुछ हर फेज आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है. अगर अच्छा फेज सिखा के जाता है, आई मीन आसानी से सिखा के जाता है, तो बुरा फेज भी कुछ सिखा के जाता है. बट वो बिलीफ रखिए, फिर अपने लोगों को अप्रोच कीजिए. डोंट स्ट्रगल ऑल बाय योरसेल्फ. Trust people, believe in it. There is another beautiful book called Your Erroneous Zones by Wayne Dwyer. I highly recommend kids to download on Audible. I repeat, Your Erroneous Zones by Wayne Dwyer. आप मानेंगे नहीं, मैं अभी भी कभी कुकिंग कर रही हूँ, कुछ भी जब मेरे पास फ्री टाइम हो, जिम में हूँ, तो मैं वो सुन रही होती हूँ. Because some books are you need continuous, जैसे meditation important है या brushing important है, वैसे ही some philosophical self motivation books are needed in life, you know, to keep encouraging and keep believing in your belief, to be honest. So वो belief जब भी टूटे, तब जब मैं थोड़ा सा घबरा रही होती हूँ कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, तब वो दोबारा से भगवान की कृपा से मैं वो सुन लेती हूँ और थोड़ा सा फिर मोटिवेट हो जाती हूँ. मैम, आपने जैसे बोला आप एक स्क्रिप्ट राइटर हो और काफ़ी मोटिवेटिंग स्क्रिप्ट राइटर हो, तो मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैम आप कुछ
ऐसी टिप्स दे सकते हो जो काफ़ी परसुएसिव स्क्रिप्ट तैयार करने में मदद करे? Beautiful question. So, this is my first written film, FYI. First written script. मुझे स्क्रिप्ट लिखनी नहीं आती थी. बचपन से मैं कविताएं लिखती रही हूँ, and I was a news reporter. तो अब मैंने काफ़ी सारे राइटर्स को अप्रोच किया और I was in a feeling कि not many people. I did get help initially. मेरी जो टैबू एक कहानी है जो समीर सोनी जुगल हंसराज वाली, उसमें मेरे को एक मलेशिया की राइटर है, हमने थोड़ा सा हमने साथ में काम किया. एक और कहानी मेरे पास टाइम नहीं था तब उस टाइम, तो मैंने कहानी दी, तो मैंने कनाडा की एक राइटर से हेल्प ली. बट एनीवेज कम बैक टू कॉन्टेक्ट योर क्वेश्चन. आप सैम्पल स्क्रिप्ट पढ़िए. ऐसा कुछ नहीं है जो सीखा नहीं जा सकता. इफ़ यू थिंक यू आर अ डिसेंट राइटर, तो कैटवॉक भी इंसान सीखता है. आप सैम्पल स्क्रिप्ट्स पढ़िए, देखिए स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता है. आई एम श्योर देयर आर वेज दैट यू कैन अवेल गुड स्क्रिप्ट्स. कुछ सैम्पल स्क्रिप्ट्स अगर आपको लोग दे सकें, इवन मैं भी कुछ अगर चाहेंगे तो अपने सैम्पल स्क्रिप्ट शेयर कर सकती हूँ कि कैसे हमने, और हम इम्प्रूव भी करते रहे. टू वेरी ऑनेस्ट, इफ यूल सी माई फिल्म, जो पहली कहानी मेरी ओल्ड सीक्रेट है जिसको लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, वो मेरी लास्ट रिटन स्क्रिप्ट थी. तो उसमें काफ़ी आपको ग्रेजुअली स्क्रीन प्ले में इम्प्रूवमेंट दिखेगा. जबकि मैंने वो 8 घंटे में लिखी है. यकीन नहीं मानेंगे. इम्प्रूव करते रहे, लेकिन वो वक्त के साथ ना आप सब सीख जाएंगे. तो रीड मोर एंड मोर स्क्रिप्ट्स, स्क्रीन प्लेज एंड लर्न फ्रॉम प्रोफेशनल्स. दैट्स व्हाट आई वुड से. एंड प्रैक्टिस. वो स्क्रिप्ट्स बनाई, स्क्रीन प्ले बनाए, उसके बाद कुछ शॉर्ट, ज़रूरी नहीं बहुत खर्चा करके, लिमिटेड एक्सपेंसेस, practice with small music videos or small short films. That's what I did before I jumped into a big project. मैम myself Sky and मैम मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए मैम आपको. Thank you. और मैम मुझे बहुत अच्छा इसीलिए लगा आपको सुन के क्योंकि मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि पहले वो दिखाओ जो लोग देखना चाहते हैं और फिर देखने लग जाए तो वो दिखाओ जो आप दिखाना चाहते हो. लेकिन मेरे सामने एक ऐसी प्रोड्यूसर बैठी है जिसने कहा है कि मेरी पहली ये है फिल्म और मैंने वही दिखाया है जो असल में दिखाना चाहिए. एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट मैम. मैम आपने बीच में जिक्र किया रामायण का. मैम हम कल्चरली बहुत रिच है मैम. वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई आज के टाइम पे किया जाता है, लेकिन हमें हमारे कल्चर को जानना बहुत ज़रूरी है. तो मैम आप जब बाहर भी शूटिंग की होगी और बाहर भी लोगों से बात की होगी, तो मैम हमारे एनरिच्ड कल्चर के बारे में कितना मैम लोगों को पता चला इस फिल्म से? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो इस फिल्म में NRI कल्चर को थोड़ा दिखाने की कोशिश की है, जो आई थिंक हर कोई रेजोनेट कर पाएगा. ऐसा नहीं है कि जैसे ग्रे शेड्स हैं, लॉट ऑफ वुमेन, लॉट ऑफ इनफैक्ट मेरे को यहाँ के लोग सभी कहते हैं फैमिली से वो रेजोनेट कर पा रहे हैं. पर मेरा NRI लाइफ प्रोडक्शंस का इनिशियल मकसद ये था, और हर तरह की फिल्म बनाएंगे जैसे से जो यूनिवर्स हमें कराना चाहेगा वो करेंगे, कि लॉट ऑफ पीपल एस्पायर टू बी NRIs बिकॉज दे फील ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, राइट. कि मुझे अमेरिका ले चलो जी, मैनू कनाडा ले चलो. हैं, मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया रहती है, उसको कितने लोग अप्रोच करते हैं. मेरे को 20 साल होने वाले हैं अमेरिका रहते हुए. तो मुझे था कि ठीक है, आइए आप भी आइए, अमेरिका आइए, लेकिन यार वी वांटेड टू शो द रोलर कोस्टर्स ऑफ NRIs. तो मैंने NRI इज अ यूनिक ब्रीड, हनी इज अ यूनिक ब्रीड. हम लोगों में अलग तरह के उतार चढ़ाव है. तो मैंने थोड़ा NRI कल्चर को दिखाने की रियल लाइफ, क्योंकि हमारी ज़्यादातर हिंदी फिल्में जो है ना वो ग्लैम लाइफ दिखाती है कि पैसा है, गाड़ियाँ हैं, वो है, शोहरत है. मैंने कपिल शर्मा शो में भी यही बोला. लेकिन हम बर्तन भी मांजते हैं, वो कोई नहीं दिखाता. हमारे पास गाड़ियाँ नहीं होती, हम कैसे एकदम प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे पेरेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हम पहुँच नहीं पाते टाइम पर, वो नहीं कोई दिखाता. तो मैंने रियल चैलेंजेस, और वो कैसे बीइंग फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट, इमेजिन आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आप फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट बन गए, दुबई जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके, लंदन जाके, अमेरिका जाके, कनाडा जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके. कितने NRIs है वर्ल्ड में, कितने, बहुत. और किसी ने किसी का रिलेटिव, किसी ने किसी का चाचा मामा, सब लोग रहते हैं. आप बन गए, पर अब आपके रिलेशनशिप पे भी तो कैसे इम्पैक्ट पड़ता है एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे, जब आप अकेले स्ट्रगल कर रहे होते हो. पता है इंडिया में डिवोर्स रेशियो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. NRIs में डिवोर्स रेशियो बहुत कम है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स इतने इंटरट्वाइंड, इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम बहुत कम है. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो मैंने रियल लाइफ ऑफ NRIs दिखाने की कोशिश की है. बाकी हम लोग जो NRIs हैं वो ज़्यादा अपने रूट से कनेक्टेड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा. मैं इंडिया आती हूँ तो मुझे लगता है मैं गाँव से उठ के शहर में आई हूँ कितनी बार. यहाँ के बच्चे ज़्यादा अमेरिकन एक्सेंट बोल रहे होते हैं मुझसे ज़्यादा. मैं हैरान हो रही हूँ. पॉइंट इज के
I mean, but हाँ, we are progressive also. So ma'am, I personally have written, I'm admitting in front of many here now, I have written stories on genital mutilation, I have written on marital rapes, but I feel inside कि यार मैं किसी को बताऊंगा तो this is not to be openly talked about, but the story which I have written, तो मैम वो ऐसे टॉपिक्स हैं लोगों को पता होना चाहिए उनके बारे में, वो हो रहा है देश में कहीं ना कहीं. Please connect with me. I love touching these bold subjects, you know, those taboo subjects, but in a graceful, elegant, implied way. कि लोग डरते क्यों हैं? मैंने जैसे अपनी कहानी में asexuality को टच किया है, जिस पे आज तक कोई फिल्म नहीं बनी है, you know, and some big brands have said that. मैंने इस फिल्म में ओपन मैरिज को टच किया है, you know, एक कहानी में, क्योंकि ऐसे बहुत इट्स अ वेरी टैबू सब्जेक्ट. लोग ओपन मैरिज चल रही है बहुत जगह, लेकिन वो बात नहीं करते हैं, कोई एडमिट नहीं करता है, you know. So there is nothing right and wrong about it. It's about how people, ये लोग कोई aliens नहीं है कि अगर किसी को जैसे you know bisexual होना, ये asexual होना, ये एक तरह की breed है, एक तरह के लोग हैं. अब जैसे gay है, right? I mean it's not a very open topic to talk about in, I don't know, India I guess. But gay, ये कुछ जानबूझ के gay नहीं बनता है. You know, gay is a जैसे वो automatically आप gay हो, आप उनको बदल नहीं सकते. अब जैसे अगर कोई एक औरत को बोले नहीं तुम औरत से शादी करो, वो नहीं कर सकती बाबा, उसको नहीं मन जबरदस्ती क्यों कर रहे हो. सिमिलरली अगर आप गे को जबरदस्ती शादी कराओगे तो दैट वोंट बी राइट. सिमिलरली एसेक्सुअल इंसान की आप शादी करा दोगे तो वो दैट पर्सन हैज नो डिजायर्स टू हैव फिजिकल इंटीमेसी व्हाट्स इन एनी वे. और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, यू नो, जिनको कोई फिजिकल इंटीमेसी, जिनको ओसीडी है आजकल कि मुझे टच मत करो. तो उस मुद्दे को मैंने जैसे एग्जाम्पल में छुआ, बट इन अ वेरी, आपको क्रिंज नहीं आएगा, आपको कहीं भी लगेगा ही नहीं कि अरे ये गंदा सीन है, ये क्या है. बट हाँ, ये कहानी हर किसी के समझ की पता नहीं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग समझेंगे भी, पर मॉर्निंग मैम. इनिशियली मेरा क्वेश्चन इंस्पिरेशन के ऊपर ही था, बट स्काई भाई ने उसे कैपिटलाइज कर दिया. सो अब ये जो क्वेश्चन है मैं थोड़ा पर्सनल होके पूछूंगा कि मैं भी आपने कहा ना कि बच्चे लिखते रहते हैं, तो मैं भी कुछ लिखता रहता हूँ चीज़ें, मोस्टली पोइट्री वगैरह. तो मैम जो आइडियाज़ होते हैं, इंस्पिरेशन तो आ जाती है, उसके बाद उस पर आपको कैपिटलाइज करना है. फिर आपने अभी बताया कि आपने ये जो स्क्रिप्ट है, आपकी पहली स्क्रिप्ट है हिंदी की खासकर, तो आपको ये मोटिवेशन कैसे मिली कि ये इंस्पिरेशन तो आ गई है, इस पर मैंने कैपिटलाइज भी कर दिया, पर ये मेरे को पब्लिक में दिखानी है, इसमें क्या कुछ अलग है, या कहते हैं ना एक्स फैक्टर, जिसकी वजह से आपको पता है कि ये चल जाएगा, अगर मैं इस पर कुछ करूँगा तो कुछ चेंज लाएगा, या कुछ ऐसा, उसमें आपकी क्या मोटिवेशन थी? फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योरसेल्फ. मुझे लगता है क्योंकि मैं एक कवित्री हूँ बचपन से, जैसे आपने बोला आप पोएट्री करते हैं, तो दैट ब्रिंग्स ऑटोमेटिकली द उम्फ, और वो डेप्थ आ जाती है, वो प्रोफाउंडनेस आ जाती है. और अगर आप ऑथेंटिक हो अपने विचार, और प्लस बीइंग ईश्वरी कृपा से अच्छा बोल लेते हैं अंग्रेजी हिंदी, और माई काइंड ऑफ लैंग्वेज इज वेरी, आई फील एज द एक्स फैक्टर, कि जो लैंग्वेज विच इज रिलेटेबल टू यू नो मोस्ट पीपल. Yeah, because I have written the language with जो दो औरतें आपस में, दो गर्लफ्रेंड्स बात कर रही है. अभी हमारी एक भाग्यश्री की कहानी है, उसमें मैंने उसकी बेस्ट फ्रेंड का किरदार प्ले किया है. तो I have the language that I have used is in English, हिंदी English language, जो आजकल की जनता आपस में हम लोग बात करते हैं. So write the language which people can resonate. I want to write the scripts which can leave definitely audience touched, moved and inspired, but simultaneously they can resonate as well. ऐसे नहीं कि they can't relate to it at all. You know, so but novelty subject stories, मुझे वो बनाने नहीं content जिसमें novelty ना हो. So and of course we all are creative people. Those who are writers are creative people. So your heart will tell you what story is calling for you, what mudda you want to you know convey to the world. फिर अपने आप काम बन जाएंगे. So ma'am, coming from someone who's very interested in acting, and as I told you, I've done theatre also. So asking from that perspective, I want to know that you told me off camera that you can now look at people and tell that if they're good actors or not. So what's that ingredient that you see in people to be like good actors? No, I'm not. I didn't say I can look at people and tell. I think you misheard, honey. मैं इतनी expert नहीं हूँ. So what I meant to say is कि आप एक्टिंग की प्रैक्टिस कीजिए, यू नो, अच्छी तरह से. और पहली बात तो एक्टिंग की it should be within you. You have to feel the feeling. There is something called method acting, you know. Right. अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, और प्लस आप ना ग्रुप बना के, जैसे I took some acting lessons in you know Boston casting. Similarly यहाँ पे कोई नेशनल कोई स्कूल ग्रुप्स, आपके स्कूल में ही आपके ग्रुप्स हों,
जिनके साथ आप आई एम श्योर देयर विल बी आजकल तो यू डोंट हैव टू, जैसे एनएसडी है वहाँ पे जाना है तो अगर आप जा सकते हो तो, अदरवाइज आजकल तो सोशल मीडिया इज सो Strengthening people. it's such a great blessing, right? You can create a Facebook group, WhatsApp group of people who want to learn acting, और आप सब एकत्रित होके once a week, but persistently करना है. If you're serious about it, pursue it. Once a week, twice a week इकट्ठे होइए, एक you know, I'm forgetting the term, but वो अपना role pick कीजिए, then gradually create the scenes as well, and practice. That's very important. And then record as well. फिर देखिए आप कैसे लग रहे हैं, natural लग रहे, different characters को pick up कीजिए. But eventually you have to go and enroll yourself in acting schools as well, somewhere in Mumbai, जिनके connections हो, because people don't hire people, actors, people hire people. अगर आपकी personality इतनी vibrant होगी कि आप relationship बना सकें, तो सिर्फ ऑडिशन देने से उससे नहीं होगा. यहाँ पे हैं कुछ एक, पर आपको मुंबई में 3 महीने का, 1 महीने का, 2 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, और वहाँ से आपको बहुत सब जगह, जैसे अनुपम खेर जी का एक्टिंग स्कूल है, या अनिल कपूर सर का, देयर इज सम, या देन दी मैं भूल गई जो सुशांत सिंह राजपूत, नहीं उसका जो डायरेक्टर था अभी जो लास्ट फिल्म आई है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम्स, बट देयर आर एक्टिंग स्कूल्स देयर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हिच आई विल टेल यू लेटर, वेयर यू कैन गो just for relationship. मैं नहीं बोल रही वहाँ से एक्टिंग सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, but ultimately you want networking also, ना, to get the jobs. That's what I meant. to maintain connections, To get connections, very important. हाँ, but आप रिसर्च कीजिए कि कहाँ से आपको ज़्यादा कनेक्शन मिल सकते हैं. You know, make career. I know अमेरिका में तो career fairs होते हैं, talent agencies होती हैं. India में you'll have to enroll into such, you know, talent agencies, but be very careful. Do not let anyone misuse you. Don't let that happen, because there are I've heard some horror stories, and that's how I created my production house, with that aim कि we can give opportunities solely and purely on the basis of talent. हमें lead तो hire करने हैं, experts, हमें नाम चाहिए, film नाम से बिकती है, but we want to enroll and hopefully give opportunities. हमने इसमें भी दिया to lot of you know, aspiring actors or aspiring talent, चाहे वो गाना किसी भी field में हो, domain में हो, so that they can learn and along with us the art of film making. Ma'am, as you have visited our CMT department, you have visited our Narad Muni studio. So how was the experience? Beautiful, very great positive energy. I can see the students which have you know, fire, the aspiration to do something magical, and of course I met the management as well. Oh my God, amazing. वो कहते हैं ना कि what जो एक पॉजिटिविटी, जो एक बच्चों को कुछ कंट्रीब्यूट करने की जो मुझे पॉजिटिविटी सच्ची में दिखी, वो ट्रिकल डाउन हो जाती है. तभी कितना अच्छा आपने हर एक डिपार्टमेंट जो मैंने देखा, दिस इज रियली अपस्केल, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड. मुझे नहीं, मैंने, मेरी उम्मीद से बढ़कर है यू नो यूनिवर्सिटी आपकी YMCA एंड बोज यूनिवर्सिटी, राइट, JC बोज यूनिवर्सिटी. जी, आई वुड हाईली रिकमेंड. आई मीन अमेजिंग फैकल्टीज. मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रही, ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे कुछ यू नो स्पेशल कहने को कहा है. आई मीन इट. बहुत अच्छा लगा मुझे. सबसे अच्छी बात लगी मुझे उनमें जो फीलिंग्स जो फील हुई कि नहीं, हम ये अपने बच्चों को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं. सो या, I'm happy to be here. Thank you. Thank you so much, ma'am. Yeah, but दो मुद्दे तो बोलने दो. Yeah, but I was just asking. Yes, honey. That before we sum up, that any concluding, as you mentioned that you are a motivational speaker yourself. So, any message which you have for the students out there, all the audience out there who are listening to you, any concluding message? Absolutely. So, near and dear ones, क्योंकि मैं इंडिया, मेरे हिंदुस्तान मेरे दिल में बसता है, और इंडिया से निकल के बाहर चली गई 19 साल पहले. तो there are 2 things that I would love to suggest and convey. कि A, public speaking. मेरे मैथ्स में 33 नंबर आए थे, केमिस्ट्री में 2 बार कंपार्टमेंट आई थी, but with God's grace, 25 years of age, I was director of recruitment in America. I was hiring for DOD, and how I give a big credit of that to public speaking and confidence. और confidence उस चिड़िया का नाम नहीं है कि मुझे बहुत कुछ ये आता था या वो आता था. Confidence is accepting your flaws, accepting yourself the way you are. इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो ऐश्वर्या राय हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता. आपके हमारे पास तो इतना खूबसूरत एग्जाम्पल है, मोदी जी को जैसे अंग्रेजी नहीं आती, क्या उनकी कॉन्फिडेंस में कहीं भी ऊंच नीच है? नहीं.
ट्रम्प को, आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक ट्रम्प लॉट ऑफ टाइम्स, इवन वो सुन भी ले तो आई डोंट अप्रिशिएट हिज विजडम इन मेनी वेज, बट क्या उसके कॉन्फिडेंस में उतार चढ़ाव है? नहीं. और पीपल बाय कॉन्फिडेंस. सो एक्सेप्ट योर सेल्फ विद योर फ्लॉज. जब कोई परफेक्ट नहीं है तो आपने परफेक्शन का ठेका ले रखा है? नहीं ले रखा ना, तो बात खत्म. तो देन चाहे वो 1000 लोग हो, 50 लोग हो, आप इंटरव्यूज देने जाएंगे, मीटिंग्स करेंगे. यार यू स्टडिंग मीडिया, तो आप इंटरव्यू लेंगे या लेने जाएंगे? रिमेंबर, एक्सेप्ट योर फ्लॉज. जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूं, तो देन यू वुड नॉट हैव द फियर ऑफ बीइंग जज्ड. आई रिपीट, you would not have the fear of being judged, and that's when the confidence will automatically become your accessory. None. Second, but मैं अपने बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, I mean you all are like kids to me now. आजकल बहुत सारे इंडिया में क्या कल्चर शुरू हो गया, मुझे ये ब्रांड का पर्स लेना है, मुझे ये लड़कियों को ये ब्रांड चाहिए, मुझे ये कपड़े इस ब्रांड के चाहिए, मुझे ये वॉच चाहिए, इस ब्रांड की वॉच चाहिए. आपके पेरेंट्स जो हैं, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से हो, चाहे वो रिच फैमिली से हो, क्या दैट ब्रांड डिफाइंस यू? Really? No. What should define you? Your talent. अपने पे भरोसा, चाहे वो भी टैलेंट ना भी दिख रहा हो. Have the faith in your ability. आपकी जर्नी सिर्फ आपकी है, चाहे वो राम हो, श्याम हो, गगन हो. आपकी जर्नी किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. And you don't need to look validation from someone else's eyes. Self validation means self validation. ब्रांड दिखा के आपको किसी के सामने वैलिडेशन, आपको किसी और से एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि आप कोई महान है, या किसी हीरो के साथ, हीरोइन का पिक्चर खिंचा के आपको वो वैलिडेशन उन सब चीजों से मिलती है. बिकम अ ब्रांड योरसेल्फ. आई रिपीट, बिकम अ ब्रांड योरसेल्फ, नॉट बाय होल्डिंग अ ब्रांड और बाय टेकिंग अ पिक्चर विद द ब्रांड. तब बात करिएगा. तब जब आपको आपकी नजरों में आप अपनी खुद की इज्जत करना शुरू कर देना, रिमेंबर, आपकी इज्जत आपकी नजरों में इतनी ऊपर होनी चाहिए कि उसे आपके अलावा कोई उतार ही ना सके. और वैलिडेशन अपने अंदर समझिए. सो प्लीज लेट द ब्रांड्स गो, बिकम अ ब्रांड योरसेल्फ. That's it. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. That was a very key, which we will follow and pursue for our future. So thank you so much for joining in. That was all from our today's segment with interview with this ma'am. Thank you so much. And NRI Wives, watch it in theaters. Yeah, and NRI Wives, do watch this movie out in theaters. Thank you. Thank you.